یہ جو ہے نا یہ صوبائی حکومت کے آرڈرز ہیں جس میں یہ ساری مائیگریشن وغیرہ جو ہے کہ اور اس کا سارا پیکج ہے بیچ میں ہر چیز اس میں مینشنڈ ہے. اس میں کوئی دفاعی جو وہاں پہ افواج جو ہیں فوج جو وہاں پہ تعینات ہے یا اس علاقے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. وادی تیرا کی نقل مکانی کو بحران اور سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. وادی تیرا میں ہر سال برفباری کی وجہ سے نقل مکانی ہوتی ہے. وادی تیرا میں کوئی آپریشن نہیں کیا جا رہا, سب مفروضے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے وادی تیرا میں آپریشن کی تردید کر دی. کہتے ہیں کے پی حکومت بتائے مختص کردہ 4 ارب روپے کہاں گئے. صوبائی حکومت اپنی نااہلی کا ملبہ اداروں پر ڈالنا چاہتی ہے. عوامی مطالبات جائز تھے, جرگے میں مشاورت ہوئی تھی. دیکھیں پی ٹی آئی کا تو جہاں تک دہشت گردی کا موقف ہے, ہم نے اس موقف کو برملا کہا ہوا, یہ ہمارا موقف ہے کہ دہشت گردی پہ سیاست نہ ہو, دہشت گردی پہ ایک موقف ہو, دہشت گردی پہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت عمل درآمد ہو. چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کی لیکن ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. ہم نے چیمبر میں ان کے لیے یہ میسج چھوڑ دیا تھا کہ برائے مہربانی خان صاحب اور بشرا بی بی کی کیسز سنوائی کے لیے لگائیں. دہشت گردی ایک ناسور ہے, اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. دہشت گردی کے مسئلے پر واضح قومی بیانیہ بنانا ہوگا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں عوام کی جان و مال کی حفاظت صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں کی ذمہ داری ہے. صوبائی اسمبلی اور تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق ہمیں تشویش ہے. ملاقاتوں پر سیاست بند کی جائے. ملاقاتیں ہوں تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ہم یا کراچی کے عوام, سندھ کے شہروں میں رہنے والے آپ سے مطالبہ کریں کہ یہ تینوں مستعفی ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ, میئر کراچی, وزیر اطلاعات, یہ نادان دوست یہ آپ کے سفینے پر اتنا انہوں نے بوجھ ڈال دیا 18 سالوں میں, اور گزشتہ 5.5 سالوں سے میئر کراچی نے کہ یہ سفینہ ڈوب نہ جائے, خود ہی فیصلہ کر کے اس بوجھ کو کم کریں. ایم کیو ایم اور سندھ حکومت کے مابین اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے. ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ سندھ, وزیر اطلاع سندھ اور میئر کراچی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. ڈاکٹر فاروق ستار نے پریس کانفرنس میں کہا ان تینوں کو استعفیٰ دینا ہوگا, ان کی جان آسانی سے نہیں چھوٹے گی. لگتا ہے وزیر اعلیٰ میئر کراچی ہمارے سوالوں سے پریشان ہیں. ہم نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا, یہ بتائیں ڈر کیوں رہے ہیں. جوڈیشل کمیشن انہیں بنانا ہوگا. ایم کیو ایم اور سندھ حکومت کے درمیان اختلافات. ایم کیو ایم رہنماؤں کا سیکورٹی واپس لیے جانے کا دعویٰ. خالد مقبول صدیقی, فاروق ستار, مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں سے سیکورٹی واپس لے لی. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا سیکورٹی واپس لینا ہمیں ڈرانے کی کوشش ہے. سندھ حکومت کے اقدامات پر چپ نہیں رہیں گے, ہمیں صرف سوال پوچھنے پر دھمکایا جا رہا ہے. وفاق کراچی کو کنٹرول میں لے, ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا پھر مطالبہ. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار نے ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکورٹی واپس لینے کی تردید کر دی. صوبائی وزیر ضیاء الحسن نجار نے کہا ایم کیو ایم پاکستان کے رہنماؤں سے سیکورٹی واپس نہیں لی. جن افراد کو قانون اور سیکورٹی کے پیش نظر سیکورٹی دی وہ فراہم کی جا رہی ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا اگر سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہوں گی. شہر میں پولیس کی نفری کم ہے, ہو سکتا ہے اسی وجہ سے سیکورٹی واپس لی گئی ہو. آج ایک اور نئی شوشہ اور خبر آئی سامنے کہ جی ایم کیو ایم سے سیکیورٹی واپس لی گئی ہے. یہ میں اس بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ اگین متحدہ قومی موومنٹ اس ٹول کو پروپیگنڈا کے طور پر لے رہی ہے. اگین وہ جس ایک مہم پہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو ہر آنکھ اشک بار تھی. کابینہ نے ایک 5 رکنی کمیٹی چیف منسٹر کی سربراہی میں بنا دی
रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब और वो सब कमेटी डिसाइड करेगी कि इस रिपोर्ट पे क्या एक्शन होना चाहिए। अगर हम समझेंगे कि मजीद इंक्वायरी की ज़रूरत है तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। MKM के किसी वजीर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, सीनियर वजीर सिंध ने भी वाज़ेह कर दिया। शजील इनाम मेमन ने कहा MKM एक बार फिर प्रोपेगेंडा कर रही है। चंद जमातों में मनफी सियासत का रवैया रहा है। आग के बाद 98वीं तरमीम खत्म करने की बातें शुरू कर दी गईं। गुल प्लाजा बड़ा सानहा था, शहदा को हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा के अहल खाना को 1 करोड़ फीकस देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 5 लाख फीकस दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने सिक्योरिटी वापस लेनी है तो ले लें, हमें कोई परवाह नहीं। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की मीडिया से गुफ्तगू। अली खुर्शीदी ने कहा हुकूमती कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। सानिया गुल प्लाजा एक कौमी सतह का सानिया है, इस पर सियासत करना किसी सूरत मुनासिब बात नहीं। सानिया गुल प्लाजा के लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिल जाता अपना एहतजाज जारी रहेगा, हर सूरत इंसाफ लेंगे। हुकूमत सिंध को अगर कोई मदद चाहिए तो गुल प्लाजा सानिया पर पंजाब हर किस्म की मुआवनत और ताउन करने के लिए तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा सानिया गुल प्लाजा के मुतासिरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। लाहौर की एक इमारत में आग लगी, बड़े सानिया से हम बर वक्त बच गए। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में तमाम मार्केटों के दाखिले और खाजी रास्तों पर तजावुजात के खात्मे का हुक्म, रेस्क्यू को तमाम दरकार आलात मिलेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की UAE के वजीर नेहान बिन मुबारक नेहान और एडी पोर्ट्स ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। पुरान बकाया बहामी के फरोग के आज़म का अयादा। शेख मोहम्मद बिन जायद की बसीरत अफरोज का यादत को भी खिराज तहसीन पेश। सदर ने UAE में मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान हमआहंगी को काबिल तकलीद करार दिया। सदर जरदारी का UAE के साथ बहरी और तजारती बंदरगाही शोबे में सरमाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। बलूचिस्तान में CTD की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के नतीजे में 10 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। कार्रवाई के दौरान 10 TTD एहलकार भी जख्मी। DIG CTD ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद हुआ। बरामद असलहे में रॉकेट लॉन्चर्स, SMGs और बारूदी मवाद बरामद। शाहिद रिंद ने कहा रियासत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा उसे मुआफी नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने सुपर टैक्स के खिलाफ दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। अदालत ने इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू सफेदी छा गई। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला जारी। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हो गईं। वरी में मजीद बर्फबारी की पेश गोई कर दी गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम बाग, सदन गली, गंगा चोटी, नेजा गली, तूली पीर में भी हर तरफ रुई के गालों की बरसात। सवात के पहाड़ों पर कई इंच बर्फ रिकॉर्ड। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से जायद बर्फ रिकॉर्ड की गई। मुतादिद रास्ते बंद, खुराक की किल्लत पैदा हुई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। शदीद सख्त मौसम के बायस पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने ज़ियारत, बोलान, योब, कला, सैफुल्ला और दीगर इलाकों में सख्त मौसम के पेश नज़र कंट्रोल सेंटर्स कायम कर दिए। जिला कोरम में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुकामी आबादी की मदद और ज़मीनी राब्तों की बहाली के लिए हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज ने तमाम मुतासरा सड़कों को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का म्यांमार के साथ दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने तजारत और मुआशी ताउन, तालीम, सकाफत और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन को सराहा। म्यांमार वज़ीर ख़ारिजा ने क़यादत की जानिब से नेक तमन्ना और खैर सगारी के पैगाम पहुँचाए। बड़ा त्यौहार, बड़े फैसले, पतंगों पर मजहबी मकामात या शख्सियत की तस्वीर लगाना ममनू। पंजाब में बसंत पर इश्तिहार अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 नाफिज, अहम पाबंदियां आयद। महकमे दाखिला पंजाब ने पतंगों पर मुकद्दस कुतब, मजहबी मकामात या किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर लगाने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी मुल्क के सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली कोई भी पतंग नहीं उड़ाई जाएगी, इस पर पाबंदी होगी। 30 रोज के लिए मजहबी और सियासी नक्शो निगार वाली पतंगों, इनकी तैयारी और खरीद फरोख्त इस्तेमाल पर पाबंदी। ममनुआ मवाद की तैयारी या फरोख्त में मुलविस अफराद को 7 साल कैद, 50 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। मुकर्रर तारीख से कबल पतंगबाजी पर 5 साल कैद, 20 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। सिंध काबीना में रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को बंद करने की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। काबीना की वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की गवर्निंग बॉडी की अस्तिरनौत तश्कील की मंजूरी। 100 एकड़ जंगलाती अराजी हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को देने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, सानह गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल किया जाएगा। हम इन मुतासरीन के साथ हैं। ईरान अमरीका कशीदगी। अमरीका की जानिब से ईरान पर हमले का खदशा खत्म न हो सका। अमरीकी फौज की मशरिक़ वस्ता में तैनाती जारी। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुँच गया। अमरीकी फौज की तस्दीक। सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी बेड़ा इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मशरिक़ वस्ता में तैनात रहेगा। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान पर हमले की धमकियों के बाद बहरी बेड़ा तैनात किया गया। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान के साथ मुआहदे के लिए 4 नई शराइत रख दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी शराइत ज्यादातर इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ईरान तमाम अफज़ूदा यूरेनियम का मुकम्मल खात्मा करे, दीगर शराइत भी शामिल। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने सुपर 6 मरहले के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए 110 रन पर ढेर। समीर मिन्हास ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल सुबहान की शानदार बॉलिंग, 4 विकेटें हासिल की। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 18वें ओवर में हासिल किया।